السلام علیکم پری نائنتھ کلاس جی ڈیئر فالکن اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہماری مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاسز کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم صفحہ نمبر 10 تک پہلے ریڈنگ کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ دو قومی نظریہ ابتدا اور ارتقاء ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریڈنگ کے ساتھ ہم نیکسٹ والے شارٹ کویسچنس کریں گے۔ شاباش تمام بچے دو قومی نظریہ ابتدا اور ارتقاء کی ریڈنگ سے اپنی اپنی بکس اوپن کیجیے۔ جی پیارے بچوں، آپ نے برصغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی، سماجی اور معاشی محرومی کے حوالے سے دو قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت سے اپنی اپنی بکس اوپن کر لی ہیں۔ پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہم دو قومی نظریہ ابتدا اور ارتقاء اس کی وضاحت پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دو قومی نظریے سے مراد ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد تھیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گل مل نہ سکیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ دو قومی نظریے کا نصب العین یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست قائم کی جائے، جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ پیارے بچوں، آئیے دیکھتے ہیں برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا کیسے ہوئی۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ 712 میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ داہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے بھی آئے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری اور انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے اوتار اور دیوتا سمجھنے لگے۔ تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی، سچی اور توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ باخوشی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد غزنوی دور حکومت شروع ہوتا ہے جو 1003 سے 1206 تک محیط ہے۔ اس دور میں موجود پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے رواج پکڑا اور اسلامی تہذیب کے نقوش گہرے ہوئے۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ کس نے؟ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ سلطنت دہلی کا دور حکومت 1526 تک رہا، جس میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، سادات اور لودھی خاندان نے حکومت کی۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے دہلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو 1857 تک قائم رہی۔ مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شہنشاہ جہاں اور اورنگزیب مشہور حکمران تھے۔ آخری مغل حکمران بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد رنگون میں قید کر دیا، جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان تھے۔ ابتدا میں سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے حامی تھے، لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے تو سر سید احمد خان کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر آپ نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے MAO، ہائی اسکول اور کالج کا قیام اہم اقدام تھے۔ اس طرح 1885 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کی کانگریس میں شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا۔ اس کے بعد سر سید نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم
मुहैया करके मुसलमानों की सियासी तरक्की के लिए रास्ता हमवार किया। चौधरी रहमत अली और दो कौमी नज़रिया। चौधरी रहमत अली इस्लामिया कॉलेज लाहौर के नामवर तालिब इल्म थे। जनवरी 1931 में उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज में कानून के शोबे में आला तालीम के लिए दाखिला लिया। 1933 में आपने लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। 28 जनवरी 1933 को उन्होंने अब या फिर कभी नहीं, नो और नेवर के नाम से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मशहूर किताबचा जारी किया, जो तहरीक पाकिस्तान के लिए मजबूत दीवार साबित हुआ। बरसीर के मुसलमानों के साथ साथ दीगर कौमें भी लफ्ज़ पाकिस्तान से आशना हुई। चौधरी रहमत अली ने दो कौमी नज़रिए की वजाहत करते हुए फरमाया, बरसीर में कई कौमें आबाद हैं। इनमें दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान हैं, जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल नहीं सकी। उनके बुनियादी असूल और रहन सहन के तौर तरीके एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ हैं कि सैकड़ों बरस की हमसायगी और एक हुकूमत के ज़ेर साया रहने के बावजूद इनमें मुश्तरका कौमियत का तसव्वुर जो है वो पैदा नहीं हो सका। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको दो कौमी नज़रिए की इब्तदा और इर्तिका की बहुत अच्छे तरीके के साथ समझ आ गई होगी। आज का हमारा लास्ट वाला टॉपिक है हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमी। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ टूट पड़े और मुसलमान माशी तौर पर इस कदर कमज़ोर हो गए कि हिंदू और अंग्रेज़ इन पर काबज़ हो गए। डियर स्टूडेंट्स, इस बारे में सर सैयद अहमद ख़ान ने फरमाया कि कोई भी बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर उतरने से पहले किसी मुसलमान का घर ना ढूंढा हो। आइए देखते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमी। अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कायम की। कंपनी हिंदुस्तान में ऐसी माशी तब्दीलियां बनाती थी जिसके ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदा खुद अंग्रेज़ों को होता था। अंग्रेज़ों ने अपनी सनत व तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान के अवाम पर भारी टैक्स लगाए, जिससे मुसलमान शदीद तरीन मुतासर हुए। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को इन तमाम ओहदों से हटा दिया जो इनके आबा-ओ-अजदाद के दौर से इनके पास चले आ रहे थे। मुसलमानों को नए ओहदों से भी महरूम रखा गया। इस तरह मुसलमान माशी तौर पर बदहाली का शिकार हो गए। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को मामूली ओहदों से तरक्की देकर आला ओहदों तक पहुँचाया। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से ज़मीनें छीनकर दूसरी अक़वाम को दे दी। मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया और इन पर आइंदा के लिए सरकारी मुलाजमत का हसूल मुश्किल बना दिया गया। अंग्रेज़ों के दौर में बंगाल में अमन व अमान की खराबी के बायस मुनासिब ज़राअत ना होने की वजह से अजनास की किल्लत हो गई। इन इलाकों में मौजूद तमाम ज़रई और सनती ज़राए नापैद हो गए। बंगाल में रेशम और सूत के कारीगर और ताजर दूसरे शहरों की तरफ चले गए। तजारती माल की नकलो हमल पर जगह जगह महसूल यानी टैक्स देने से माल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो ख़रीदारों की कुव्वत ख़रीद से कहीं ज़्यादा थी। इससे तजारत बहुत मुतासर हुई। इस तरह दूसरी अक़वाम के साथ साथ मुसलमानों को भी बहुत नुकसान उठाने पड़े। ईस्ट इंडिया कंपनी के नए टैक्सों के बायस किसानों पर महसूल टैक्स की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस तरह अंग्रेज़ों के हाथों मकामी ज़राअत को सख्त नुकसान पहुंचा। डियर फाल्कन स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग। प्यारे बच्चों, आज की रीडिंग में हमने टॉपिक दो पढ़े हैं। एक, दो कौमी नज़रिया, इब्तदा और इर्तिका, और एक टॉपिक हमने पढ़ा है हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमी। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी रीडिंग यहीं तक थी। प्यारे बच्चों, आइए कॉपी से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जी प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज में 6 सवाल थे मुख्तसर, जिसमें से 5 सवाल जो हैं वो आपको लेक्चर नंबर 3 के साथ सेंड कर दिए जाएंगे। और आज देखिए सबक नंबर 1, पाकिस्तान के नज़रियाती असास। मुख्तसर सवालात के जवाबात दें। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमारा एक्सरसाइज का रहता था। उसके बाद बाकी क्वेश्चन जो हैं वो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आपने भी ऐसे ही याद करके इनको नीट करके कॉपी पे नोट करना है। सवाल नंबर 6 देखिए, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का क्या मकसद था या काम करने का क्या मुतालबा था। जी प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का क्या मकसद था। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया
कंपनी कायम करने का मकसद ये था कि हिंदुस्तान में बरतानिया की तैयार करदा अशिया को फ़रोख्त किया जाए, इसका सारा फ़ायदा अंग्रेज़ों को पहुंचाया जाए, हिंदुस्तान के अवाम पर भारी टैक्स लगाकर मकामी सनत और ज़राअत को तबाह किया जाए। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। नज़रिए के लुग़वी और इस्तिलाही मानी बयान करें। नज़रिए के लुग़वी मानी सोच या मकसद है और इस्तिलाह में किसी शय को वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच, फ़िक्र और नक्शा उभरता और कायम होता है नज़रिया कहलाता है। नेक्स्ट वाला सवाल है, क़याम पाकिस्तान के हवाले से कायद-ए-आज़म ने क्या फरमाया था? इसका आंसर है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब बरसगीर का पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। नेक्स्ट वाला सवाल है, इस्लाम में किन अकायद पर ईमान लाना ज़रूरी है? प्यारे बच्चों, इसका आंसर हमने रीडिंग में भी पढ़ा है। अकायद में तौहीद, रिसालत, कुरान, मलाइका, आखिरत वगैरह पर ईमान लाना ज़रूरी है। जी डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग के साथ आप 4 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 में भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको सेंड किए गए थे। आज भी आपको जो है वो लेक्चर नंबर 4 के साथ ये क्वेश्चन आंसर सेंड किए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने तमाम क्वेश्चन आंसर जो हैं वो साथ साथ याद करके नीट करके कॉपी पे नोट करने हैं। जी प्री 9th क्लास प्यारे बच्चों, आज की डायरी नोट कर लें। आपने सफ़ा नंबर 10 से 13 तक रीडिंग करनी है और 4 मुख्तसर सवालात जो कि आपको लेक्चर के साथ सेंड किए जाएंगे वो याद भी करने हैं और नीट करके कॉपी पे नोट भी करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, डायरी दोबारा से सुनिए। सबक नंबर 1, पाकिस्तान की नज़रियाती असास, सफ़ा नंबर 10 से 13 तक रीडिंग और 4 मुख्तसर सवालात याद करें और लिखें। जी डियर फाल्कन स्टूडेंट्स, प्री 9th क्लास, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेक्चर नंबर 5 में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।